बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद, योर केमिस्ट्री टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 के बी पार्ट के साथ जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री का प्रोटीन वाला टॉपिक और उसका सब टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है हमारे कोर्स में, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, जिस तरह वर्ड इम्पोर्टेंस है तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। बोर्ड के पेपर में इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, लाइक प्रोटीन क्या है, एक्चुअली प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने कहा कि प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सट्रीमली हायर। नेचर ऑफ प्रोटीन हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन जो है वो किस नेचर का है। प्रोटीन में कार्बोक्सिलिक और अमीनो फंक्शनल ग्रुप दोनों मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन एम्फोटेरिक इन नेचर है। और जब इसको डिज़ॉल्व फॉर्म में हम देखते हैं पानी में तो ये एक आयंस की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिस आयन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। तो इस बेस पर हमने इसको कहा कि इसको ज्विटर आयंस भी कहा जाता है। और उस दौरान इसका एक पीएच होता है जिसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। नाउ प्रोटीन कैन बी प्रिसिपिटेटेड, प्रोटीन कैन बी प्यूरिफाइड, protein can be isolated, protein can be separated from their mixture, protein can be extracted if we are in doubt that either it contain certain dissolved impurities. When it dissolve in water and we add some salt of heavy metals or alcohol or we heat it up, then we can get the precipitate of protein, which is almost free from certain impurities, and that precipitate is almost composed of proteins molecules. Another one is protein should be coagulated. Coagulation mean ke when the protein molecule are converted from liquid or another state into the solid state or gel phenomena or gel form. How it can be coagulated? So the simple example of coagulation of protein is egg protein. When we heat up the egg or when we boil the egg, then we can examine that the liquid portion of egg is converted into solids form. So this conversion is known as coagulation. The conversion of liquid into the solid form of a substance is known as coagulation. And during coagulation, during this phenomena, protein is converted from liquid into the solid form and it lost its biological and structural features. Now, my dear students, let's discuss the importance of protein. What is the role of protein? Why we use protein? Why we can say that it is the prime importance, it have a prime importance in the life of organism. So first one, protein play a vital role in the biological reaction. It act as a catalyst in biological reaction. मतलब protein is also known as biocatalyst, biological reaction in the form of enzyme. एंजाइम क्या चीज़ है? एंजाइम प्रोटीन है जो कि वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कैटलिस्ट का काम क्या है? एंजाइम किस चीज़ को कहते हैं? हम कहते हैं द सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन within the body of organisms. वो सब्सटेंस जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है। बाज लोग कैटलिस्ट को यू डिफाइन करते हैं द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नो बेटा, नाउ इट इज द टाइम टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट। Catalyst
increase as well as decrease the rate of chemical reaction. As you are quite familiar with this concept that sometime the reaction does not increases, sometime its rate decreases, and sometime the reaction does not proceed in the presence of catalyst. So that's why we can say that catalyst is a substance which change the rate of chemical reaction, either it increase or decrease, which alter the rate of chemical reaction, change or alter. इनमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इंक्रीज भी हो सकता है रेट और डिक्रीज भी हो सकता है। जिस तरह के हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम अल्काइन की हाइड्रोजनेशन कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडर्स कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन स्टॉप होता है अल्कीन पे, मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता। कैटलिस्ट तो मौजूद है, रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा। इसलिए क्यों नहीं होता? बिकॉज क्विनोलिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज एन एंजाइम, और इनके सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट होते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटर, जिसको हम पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं, पॉइजनस ऑफ एंजाइम कहते हैं, एक्शन ऑफ इनहिबिटर कहते हैं, इसके बेस पर फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वी रिमूव दैट इनहिबिटर्स। तो बेटा एंजाइम वाला पोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे भी। इनहिबिटर्स के फिर टाइप्स हैं, कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव और अदर टाइप्स ऑफ इनहिबिटर हैं कि हम किस तरह एंजाइम को इनहिबिटर फ्री करेंगे और इसके फंक्शंस को दोबारा एक्टिवेट करेंगे। लेकिन मैंने आपको डिफिनीशन के लिहाज से बात बताई है। इसी तरह ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं एंजाइम, ये क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीन इन नेचर। ये एंजाइम क्या है? ये प्रोटीन इन नेचर है। ये जो हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, ये कौन सा कैटलिस्ट है? ये हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करते हैं। और ये बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें डाइजेशन, तो डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? माउथ में हम जब हम कोई चीज लेते हैं, डालते हैं मुंह में, तो यहां पर सलाइवा जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं उस एंजाइम को जो हम डाइजेशन के दौरान यूटिलाइज करते हैं, तो उस एंजाइम को क्या कहा जाता है? उस एंजाइम को कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, या सलाइवरी एमाइलेज उसको कहा जाता है, या उसको टाइलिन कहा जाता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है माउथ में। ठीक है, सलाइवा के एक्शन में सलाइवा कंटेन सर्टेन एंजाइम और दीज एंजाइम एक्ट टू डाइजेस्ट द फूड और सम पोर्शन ऑफ द फूड। इसके अलावा अदर एंजाइम भी है, इन्वर्टेज, डायस्टेज, एमाइलेज, जो कि बाकी फूड को फिर एलिमेंट्री केनाल में कुछ एंजाइम होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। सो अगर ये एंजाइम ना हो तो इंसान की ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे वो ब्लड में कन्वर्ट नहीं होगा, ब्लड नहीं बनेगा तो लाइफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्लड फिर हमारे बॉडी को जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो उस फ्लूइड के ज़रिए हमारे बॉडी को मिलते हैं, और वो उस फ्लूइड को कहाँ से मिलते हैं? उस फ्लूइड को वो फूड से मिलते हैं, और फूड में से कैसे निकलते हैं? फूड जब डाइजेस्ट हो जाए, फूड कैसे डाइजेस्ट होगा? फूड एंजाइम के एक्शन से डाइजेस्ट होगा। एंजाइम क्या चीज़ है? एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, दैट्स व्हाई प्रोटीन प्ले a vital role in the life of organisms. Now, along with this, protein play important role in the genetic phenomena. Mean it transfer genetic information
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब मतलब क्या है कि ये जेनेटिक इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कौन सा प्रोटीन हम लेते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो कि डीएनए एंड आरएनए है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफरिंग मतलब जीन्स के लिहाज से जेनेटिक फिनोमेना के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन इस प्रोटीन के ज़रिए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द conversion of certain information, means that we can say that protein act as a carrier of genetic information or character. They serve as a basis of inheritance of trait. मतलब protein act as a carrier of genetic information from parents to offspring or some character in the form of which kind of protein is used, that is known as nucleoprotein. Now protein also perform certain growth regulatory functions. Protein also play a vital role in the growth of various organisms. Like हम कहते हैं प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन उसको कहा जाता है। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है? मीन्स दैट दीज आर इंसुलिन, ग्लूकोजन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। ये क्या है? दीज ऑल आर हार्मोन्स। और हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। और ये क्या करते हैं? दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ विच दे कैन परफॉर्म सर्टन हार्मोन्स। दे रेगुलेट द ग्रोथ and they also perform various physiological function. Means that protein also regulate the growth of various organism. Which kind of protein are regulate the growth of organism? These are insulin, glucagon and growth hormones, जिसके लिहाज से ऑर्गेनिज्म वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन आल्सो एक्ट एज अ कैरियर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरियर करते हैं। कुछ और कैरियर भी हैं, मतलब हेमोग्लोबिन है, इट इज ऑक्सीजन कैरियर। इसी तरह सीरोप्लाज्मा ये कॉपर कैरी करता है। किसको? ब्लड प्लाज्मा को। इसी तरह प्रोटीन आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन। सो इसमें हमारे पास दो तरह के प्रोटीन हैं। व्हाट इज नोन एज फाइब्रस प्रोटीन, अनदर इज नोन एज ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन, दीज आर थ्रेड लाइक, इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में सोल्युबल नहीं है, एंड क्वाइट रेजिस्टेंट टू एंजाइमेटिक एक्शन। इसी तरह इसके फिर टाइप्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन के टाइप्स हैं, जिसको हम कहते हैं कोलेजन,
elastin and keratin. We have three different types of fibrous protein. Collagen, these proteins are present in the connective tissue. Elastin are present in the arteries. These are the protein of arteries and other elastic tissue. And keratins are present in the hair and nails. These are the protein of hair and nails. इसी तरह ये तो हो गए हैं फाइब्रस प्रोटीन का टाइप्स। इस तरह हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन ये राउंड लाइक होते हैं। दीज आर सोलेबल इन वाटर, ये वाटर सोलेबल हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं हेमोग्लोबिन एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम। राउंड शेप के होते हैं एंजाइम और सोलेबल इन वाटर होते हैं। नाउ इसके साथ साथ प्रोटीन हमारे इम्यूनिटी को भी बहुत बूस्टअप करता है, जिसके जरिए हमारे ऊपर वेरियस वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये वगैरह नहीं होते हमें। और वो क्या है, जो कि इनमें से मेन जो है वो है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज यूज्ड टू बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी, विद द हेल्प ऑफ विच वी वुड बी एबल टू act against HBS. There are various hormones which जिसमें HCV, HBS, HIV और आजकल जो बीमारी चल रही है कोविड, तो इन वायरसेस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में वेरियस प्रोटीन मौजूद हैं जो कि उनको कैप्चर करते हैं, उनको पकड़ते हैं और उनको उनके साथ मुकाबला करते हैं और हमारे ऊपर वो असरअंदाज नहीं होते। सो बेटा, दिस इज समथिंग अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन की अब हमने प्रोटीन के बारे में क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ ली, टाइप्स के लिहाज से क्लासिफिकेशन पढ़ी, प्रोटीन के हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, प्रोटीन के हमने इम्पोर्टेंस पढ़ लिए। प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है, एक कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज़ होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है, ग्रोथ रेगुलेशन भी करता है, इसी तरह कैरियर मतलब कुछ चीज़ें कैरी भी करता है, जिसमें आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, सेलुलर प्लाज्मा कॉपर इन ब्लड प्लाज्मा, स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसी तरह इट विल आल्सो बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी। सो दिस इज समथिंग अबाउट प्रोटीन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंजाइम, टाइप्स ऑफ एंजाइम, properties of enzyme, functions of enzyme, factor affecting on enzyme। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।